Hello everyone, once again we are here to continue our studies. I hope you all are fine. So let us start the chapter 4 of civics, that is Panchayati Raj in rural areas. What is the topic? Panchayati Raj in rural areas. तो in the previous chapter we studied about the government. हमने previous chapter में पढ़ा था about different types of government, like government at the center, government at the state level, and then local government. So पंचायती राज कौन से लेवल की गवर्नमेंट है? इट इज़ द third type, that is the local government of a village or some villages together. सो पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम, जैसे हमने नेशनल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात की थी, हमारे एमपीज़ और हमारे एमएलएज़ की बात की थी कि वो लुक आफ्टर करते हैं एट सेंट्रल लेवल. आवर पार्लियामेंटेरियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल लेवल इश्यूज़, और स्टेट लेवल इश्यूज़ के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर रिस्पॉन्सिबल. एंड द थर्ड लेवल गवर्नमेंट which we talked about, the local government. So local government भी अगर हम बात करते हैं in cities, our local government of cities, ज़िला परिषद is responsible. At the rural area, village लेवल पे, विलेज एरियाज़ के लिए हमारी पंचायती राज सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल, फॉर द टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ द पीपल. मीन्स एवरी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज़ डन बाय द पंचायत इन रूरल areas. For some more information, I want to show you a small video and then we'll continue the explanation. First of all, have a look of the video. Introduction. Now you may see this Buddy video lives in carefully. city with her parents. She is going to village in summer vacations where her grandparents live. This is the first time she is visiting an Indian village. On her way from the railway station to her grandparents' house, she finds a group of 5 elderly people sitting under a banyan tree. They are listening to some men standing in front of them. She is curious to know what is happening. Her father tells her that the elderly men are members of the Gram Panchayat and are solving some problem of the villagers. In this lesson, you will learn about the working of Gram Panchayat. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to explain the structure of a Gram Panchayat, list the functions of a Gram Panchayat. What is Gram Panchayat? We all know that the governments in the states and union territories maintain law and order in their cities and look after the needs of their city dwellers. The question that comes to our mind is, who is responsible for keeping law and order in villages and meeting the requirements of villages? The answer is the village local government, which is known as village panchayat or gram panchayat, performs both the functions. Let us now understand the structure of the gram panchayats in detail. Gram panchayat. A gram panchayat is the local government of a village. It is formed by members elected by the villagers in the gram panchayat elections. These elections are held every year. Anybody who is 18 years of age and above can cast a vote in the elections. Members of Gram Panchayat. A Gram Panchayat consists of 5 members. The head of the Gram Panchayat is called the village pradhan or the sarpanch. The sarpanch of a Gram Panchayat can be a male or a female. The members of a Gram Panchayat hold meetings to solve the problems of the villagers. The Panchayat solves land, water, and other disputes among villagers. Let us learn more about the other duties of a Gram Panchayat. Functions of Gram Panchayat. The Gram Panchayat looks after the cleanliness of the village. It
also takes care of the water supply to the village. It serves to maintain roads, streets, and proper lighting in the village. It makes arrangements for the education of children and adults of the village. Functions of Gram Panchayat. The Gram Panchayat provides facilities for maintaining public health and hygiene and organizes health programs for its people. It also maintains law and order in the village. For performing all these functions, the Gram Panchayat receives funds from the state government. There is one word for each statement. You have to match them with the correct option. Thank you for watching this. Now we'll continue our explanation. So what is Panchayat? What is Panchayat? अभी हमने सुना Panchayat is a form of local government in the rural areas. Panchayat एक local government है हमारे rural areas में, that is our villages. In our villages it is a local government. The local administration at the village level is looked after through a 3-tier system, namely Panchayats, ब्लॉक समितिस एंड द ज़िला परिषद. सो जब हम बात करते हैं पंचायत की तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ की है? विलेज की है, लेकिन ये इसको देखा जाता है इट इज़ बीन लुक्ड आफ्टर थ्रू अ 3-tier सिस्टम. इसके लिए भी एक 3-tier सिस्टम है जहाँ पर पंचायत हैं, ब्लॉक समितिज़ हैं, ज़िला परिषद है. एज इट इज़ क्लियर वी हैव पंचायत एट द विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक और तहसील लेवल एट द ज़िला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. जैसे हम बात करते हैं वी आर लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर, तो डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर क्या है? तो उसके अंडर किसके अंडर है डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर? इट इज़ अंडर द ज़िला परिषद. देन वी हैव द ब्लॉक समितिज़ हैं, उससे लोअर लेवल पे ब्लॉक समितिज़ हैं, उसके अंडर कुछ विलेजेस आते हैं, उसके अंडर 2 और 3 या उससे ज़्यादा विलेजेस, अगर नंबर ऑफ़ विलेजेस ज़्यादा हैं तो और नियर बाय हैं then they may come under the control of ब्लॉक और ब्लॉक समिति. और ब्लॉक समिति जो है वो किसके अंडर में? इट इज़ इन ज़िला परिषद. एंड ब्लॉक समिति के अंडर में है विलेज पंचायत. ऑल द 3-tier पुट टुगेदर एंड कॉल्ड पंचायती राज. तो ये जब हम ज़िला परिषद, ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत की बात करते हैं या विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति या ज़िला परिषद की बात करते हैं, सो दे आर द 3-tier. ये 3-tier हैं ऑफ द सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द पंचायती राज. अंडरलाइन, आई हैव ऑल्सो अंडरलाइंड इन द बुक, यू मस्ट ऑल्सो अंडरलाइन. This present form of Panchayati Raj with this 3-tier form of Panchayat, this present form of Panchayati Raj with this 3-tier system is the idea. ये idea किसका है by the way? It is the idea बलवंत राय मेहता कमेटी. ये कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी का ये आइडिया है टू मेक अ पंचायती राज सिस्टम. इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको पिक्चर, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं. फर्स्ट वी हैव विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस. जैसे 3 और 3 मीन्स 2 विलेजेस का उनको हमने किस में इंक्लूड करा? एक ब्लॉक समिति में. 2 विलेजेस को एक ब्लॉक समिति में इंक्लूड करा. और उसके बाद उस ब्लॉक समिति, जितनी भी ब्लॉक समितिज़ आई, जितने भी ग्रुप ऑफ विलेजेस ब्लॉक समितिज़ के अंडर है, उस ब्लॉक समिति को कौन लुक आफ्टर करता है? इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ज़िला परिषद. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम एक सिस्टम की बात कर रहे थे, हम नेशनल लेवल की हमने बात करी थी गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट 3 लेवल्स की हमने बात करी थी, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? टू सी द नीड्स, टू सी द सिक्योरिटी, टू सी द हेल्थ एंड हाइजीन, टू सी द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द नेशन. होल नेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्टेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेट अपने स्टेट में जितनी भी सिटीज़ और विलेज
विलेजेस जितने भी रूरल और अर्बन एरियाज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए आंसरेबल होता है। अब हम जब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल की गवर्नमेंट, तो वो हमारी है ज़िला परिषद। ज़िला परिषद सिटी मीन्स इसके अंडर ब्लॉक्स आते हैं और ब्लॉक्स के अंडर आते हैं विलेजेस। अब विलेजेस किसके हैं? विलेज पंचायत मीन्स देयर द विलेज पंचायत इज देयर टू लुक आफ्टर द village, the needs, the disputes, the requirements, the needs of the people of the villages. So इस तरह से ये 3-tier system है. The people who this system is very much responsible for that particular area. अब हम सोचें कि शाहजहांपुर की एडमिनिस्ट्रेशन सीधा जाकर पुआया में काम करने लग जाए या तिलहर में काम करने लग जाए, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, है ना. दे आर द विलेजेस. तो जिस ब्लॉक के अंडर वो विलेजेस या वो एरियाज़ आ रहे हैं, वो ब्लॉक उनको उनकी पंचायत्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा दैट दोज पंचायत्स विल लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ दोज एरियाज़. और अगर हम ये सोचें कि हमारे शाहजहांपुर की एडमिनिस्ट्रेशन को किसी पंचायत के अंडर हम कर दें, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव अनदर level, another tier of government which is responsible for the needs and disputes and responsibilities or requirements of the people of the district. So अलग अलग level पे अलग अलग governments are authorized to see different areas where their help is required, where the people require their help. So at that place only they are being helped by the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स. जैसे हमने बात करी विलेज पंचायत, वो विलेजेस की ध्यान रखेगा, और ब्लॉक समिति वो ब्लॉक्स का ध्यान रखेगी, और ज़िला परिषद वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखेगा. उसमें विलेज पंचायत ब्लॉक समिति को रिपोर्ट देगी, ब्लॉक समिति ज़िला परिषद को रिपोर्ट देगी. फिर अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ हेल्प की ज़रूरत है, देन विलेज के लिए ज़िला परिषद किसको उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करेगी? ब्लॉक समिति को इन्फॉर्म करेगी. ब्लॉक समिति आगे उस हेल्प को फॉरवर्ड करेगी टू द विलेज पंचायत. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम वेयर ऑल दीज 3 tiers आर इंटरकनेक्टेड. अब आते हैं हम द 3 tier सिस्टम. अंडर द पंचायती राज द विलेज पंचायत आर द बेसिक यूनिट्स. अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो विलेज पंचायत उसका बेसिक यूनिट है, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस आर द मीन्स दे आर द मेंबर्स और दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विलेज पंचायत. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे विलेजेस, और ये ज़रूरी नहीं कि हर विलेज की अलग से आपकी विलेज पंचायत हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ छोटे विलेजेस हो, नियर बाय विलेजेस हो, बहुत नज़दीक हो एक दूसरे से. तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 विलेजेस की एक विलेज पंचायत बन जाती है, या 3 विलेजेस की एक विलेज पंचायत बन जाती है, जो कि वहाँ के लोगों के हर तरह के डिस्प्यूट्स, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो अब हम पढ़ते हैं 3 tier सिस्टम. तो अब हम 3 tiers, आपको मुझे लग रहा है कि आपको इस ग्राफ से, इस फ्लो चार्ट से आपको समझ आया होगा कि कैसे काम होता है. मीन्स दीज 3 this and this they are interconnected, है ना. तो अंडर द पंचायती राज द विलेज पंचायत आर द बेसिक यूनिट्स. अगर हम बात करें पंचायती राज में, विलेज पंचायत बेसिक यूनिट है. वी हैव नोटेड दैट द वर्क ऑफ अ विलेज पंचायत इज़ लिमिटेड. विलेज पंचायत का काम क्या है? लिमिटेड है टू अ विलेज ओनली, टू अ विलेज और टू 2 villages only, and it is of primary type. और ये सिर्फ प्राइमरी टाइप है, मीन्स जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं दैट कैन बी सॉल्व बाय द विलेज पंचायत. जैसे लैंड डिस्प्यूट हो गया, इरिगेशन प्रॉब्लम हो गई, और अगर किसी को मीन्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, उस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने में विलेज पंचायत हेल्प कर देती है. आपने इंग्लिश में भी अपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, अलगू वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, है ना. हीरा मोती जिसके पास वो थे, ऑक्स थे, एंड ग्रैंड मदर जुम्मन, है ना. तो उसमें आपने जो पंचायत के बारे में पढ़ा है ना. तो पंचायत क्या होती है? जो विलेज लेवल पे डिस्प्यूट्स सॉल्व करती है. एंड इट इज़ ऑफ प्राइमरी टाइप.
but there are certain functions or projects which a village और इट्स पंचायत कैन नॉट अंडरटेक। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे ही प्रॉब्लम्स को या सारे ही प्रोजेक्ट्स को विलेज पंचायत अकेले अपने लेवल पे ही सॉल्व कर सके। नो, इट कैन नॉट डू ऑल द वर्क्स ऑल अलोन। फॉर दिस इट हैज़ टू डिपेंड अपॉन अदर नियर बाय विलेजेस। उसके लिए अपने नियर बाय विलेजेस से भी कंसल्ट करना पड़ता है या डिपेंड करना पड़ता है अपॉन द टाउन। जैसे अब हमें विलेजेस में, सपोज़ हमें किसी विलेजेस में, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजेस आते हैं, किसी एक विलेज में हमको प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना है, वहाँ पे नहीं है, तो दैट प्राइमरी हेल्थ सेंटर for medical facility, the village panchayat will not be able to decide everything at their own. They will have to take help for this purpose. They will depend upon the town, or they will depend upon the Zilla Parishad. They will inform to the district administration, district government that we want to do this thing, we want this facility in our village. Then district administration will take decision for that purpose. Let us take an example. इसमें आप दूसरा एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं. Village panchayats may be able to run primary schools in their village. अब प्राइमरी स्कूल हर विलेज में होता है. मीन्स प्राइमरी क्या होता है? फिफ्थ तक हर विलेज में स्कूल होता है. लेकिन अब हम कोई सोचे, किसी विलेज में कोई पंचायत ये सोचे कि हमको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना है, मीन्स अप टू 12th खोलना है. अब 12th तक स्कूल, देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज़ फॉर 12th फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 12th क्लास स्कूल. मीन्स इंटर कॉलेज के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है विच यू हैव टू सी. There are so many requirements which have to be seen by the administration. तो जो पंचायत है वो उसके लिए अपना डिसीज़न नहीं ले सकता, वो अपने आप उसके लिए कुछ भी ऐसा प्लान नहीं कर सकता. उसके लिए उसको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? फॉर दिस अ नंबर ऑफ़ विलेजेस शैल हैव टू जॉइन हैंड्स. इसके लिए सपोज़ एक विलेज है, उसने कहा कि हम खोलना चाहते हैं, तो उसको अपने नियर बाय विलेजेस से भी कंसल्ट करना होगा कि डू यू अग्री विद दिस प्रपोजल. क्या आप सब इस चीज़ से अग्री हैं कि हम अपने विलेज में एक इंटर कॉलेज खोल सके ताकि हमारे बच्चों को डेली टाउन्स में, सिटीज़ में अप डाउन ना करना पड़े. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द विलेजेस, ऑल द नियर बाय विलेजेस टू. तो उस कंडीशन में वो नियर बाय विलेजेस भी जब अपना कंसेंट दे देंगे, देन दे विल हैव टू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट. सो फॉर अगर वो सब आपस में अपने आप को ज्वाइन करते हैं, दे में ज्वाइन देयर हैंड्स एंड दे टेक अ यूनानिमस डिसीजन, देन दे मे स्टार्ट इंटर कॉलेज in their village, in any of their village, and for that they have to plan first, and all the formalities or requirements whatever is there for the establishment of a inter or secondary school, they may start doing that. So for bigger common problems or projects, several neighboring villages are grouped together to form a ब्लॉक समिति. अब जब हमने बहुत सारे विलेज एक साथ मिल गए तो वो क्या बन गई? एक ब्लॉक समिति बन गई. अब ब्लॉक समिति ने ये डिसीज़न लिया कि हम मीन्स जो उन्होंने हाई लेवल का कुछ भी डिसीज़न लेना है या काम करना है, दैट हैज़ टू बी सीन बाय द ब्लॉक समिति. अब ब्लॉक समिति क्या है? इट इज़ अ सेकेंड टियर. इसमें हम देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि विलेजेस इकट्ठे हुए, उसके बाद वो क्या बना? ब्लॉक समिति बना. अब ब्लॉक समिति का क्या बन गया? सेकेंड टियर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. एंड ब्लॉक समिति के बाद वी हैव टू सी द अदर थिंग्स ऑल्सो. अब हम देखते हैं कि ब्लॉक समिति का क्या है? इट लुक आफ्टर द कॉमन नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज इन अ ब्लॉक और तहसील. अब ये क्या देखता है ब्लॉक समिति? ये देखता है कॉमन नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है एट ऑफ द विलेज इन अ ब्लॉक और तहसील लेवल पे ये काम करते हैं. अब ब्लॉक हैज़ 100 विलेजेस. अंडरलाइन कर लो कितने विलेजेस होते हैं एक ब्लॉक में? 100 विलेजेस होते हैं. बट देयर आर मेनी मोर 100 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट. एक ब्लॉक में 100 विलेजेस हुए. अब हो सकता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ
विलेजेस डिवाइड हो जाते हैं. हैविंग सो मैनी ब्लॉक समितिज़ इन इट. इस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ब्लॉक समितिज़ हो गई. वन ब्लॉक समिति विल नॉट बी सफिशिएंट टू लुक आफ्टर ऑल द नीड्स. लेकिन वन ब्लॉक समिति सब पूरे ब्लॉक की मीन्स और उनकी नीड्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी नहीं होगी. मोर ओवर देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स आर बिगर. क्योंकि ब्लॉक समिति में जितने विलेजेस है, ब्लॉक समिति में 100 विलेजेस है ना, तो हो सकता है वो 100 विलेजेस भी काफ़ी ना हो हमारी उन प्रॉब्लम्स और हमारी उन नीड्स को सॉल्व करने में. हमारी नीड्स और प्रॉब्लम्स उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हों. दे नीड मोर फंड्स एंड एक्सपर्ट्स टू. अब उसके लिए हमने अभी बात करा हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट का, मैंने आपको एग्जांपल दिया. फिर हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करी. तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? दे आर वेरी मच मीन्स बिग प्रोजेक्ट्स जिसके लिए बहुत सारा फंडिंग ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मनी रिक्वायर्ड है, लैंड रिक्वायर्ड है, उसके बाद उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए मनी रिक्वायर्ड. सो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स, है ना. सो इस कंडीशन में क्या होता है? दे नीड मोर फंड्स एंड एक्सपर्ट्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम. इस कंडीशन में उन ब्लॉक्स समितिज़ को ज़्यादा फंड्स और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा ग्रुप्स की ज़रूरत है जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को, और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. सो इन फॉर दैट पर्पस अब क्या हुआ? द ब्लॉक समितिज़ इन अ डिस्ट्रिक्ट आर ग्रुप टुगेदर. अब ब्लॉक समितिज़ को भी ग्रुप मीन्स एक साथ जोड़ दिया गया, एक साथ मिला दिया गया टू मेक द ज़िला परिषद. अब ब्लॉक समितिज़ को मिलाकर क्या बन गया? 3 ब्लॉक समितिज़ की क्या एक बन गई? ज़िला परिषद. जैसे अभी हम इसने प्रीवियस पेज पे देखा था, तो 3 ब्लॉक समितिज़ की एक ज़िला परिषद बन गई. अब ज़िला परिषद क्या कर रही है? ज़िला परिषद और द डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग इज़ द 3rd tier इन द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज. ज़िला परिषद जिसके अंदर कई सारी ब्लॉक समितिज़ आती हैं, वो बन गया 3rd tier ऑफ दिस पंचायती राज सिस्टम. नाउ ऑल द 3 इंस्टीट्यूशन नेमली द पंचायत, द ब्लॉक समिति एंड ज़िला परिषद टुगेदर आर कॉल्ड पंचायती राज. तो अब हम कह सकते हैं कि विलेज पंचायत, ब्लॉक समितिज़ और कई ब्लॉक समितिज़ को मिलाकर एक बनती है ज़िला परिषद, और ये 3 tiers मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? पंचायती राज. और 3 tier सिस्टम ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. रूरल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनता है यहाँ पर आकर, जो कि विलेजेस में डिफरेंट लेवल्स पर विलेजेस के लिए काम करता है. अब हम आगे पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज. पंचायती राज की सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आफ्टर द डिस्कसिंग, ये हमने अंडरलाइन करा, अब हम पढ़ेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. आफ्टर डिस्कसिंग द विलेज पंचायत, ब्लॉक समितिज़ एंड द ज़िला परिषद, we can well appreciate the significance of पंचायती राज. द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटवर्दी. अब हम देखते हैं इस विलेज पंचायत और इस सिस्टम को, पंचायती राज सिस्टम को डिस्कस करने के बाद हमको इसमें हमने ब्लॉक समितिज़ को डिस्कस करा, ज़िला परिषद को. अब हम इनकी इम्पोर्टेंस, कितनी इनकी सिग्निफिकेंस है, और हमें पता चला कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट, हाउ मच सिग्निफिकेंट दिस सिस्टम इज़. The following points are noteworthy. These points are important. These are the basic, means you can say basic features. So basic works. Now what they do? It has brought about general and political awareness in the rural masses. इससे क्या हुआ कि rural masses, गांव में रहने वाली जनता, लोग, masses means लोग, people, कि इससे इस सिस्टम से, इस 3 tier सिस्टम से क्या हुआ? ये इसने एक जनरल और पॉलिटिकल अवेयरनेस लाई गांव के रहने वाले लोगों में. सेकंड है, इट हैज़ हेल्प टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल. हमने जैसे कि वीडियो में देखा था, जो पंचायत होती है वो कैसे इलेक्ट होती है? इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेजेस, है ना. ग्राम सभा, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा. ग्राम सभा रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इलेक्शन ऑफ
पंचायत. It has helped us to establish democracy at the grassroots level. और ये क्योंकि विलेज हमारा एक सबसे पहला, क्योंकि अगर हम पढ़ें या हम जब स्टडी करते हैं या हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारा कंट्री एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रहा है before independence and after independence also. Most of our population is living, means most of the population is living in villages. So it is a grassroots level of the country from where we can say that we can see the democratic system है, because we are electing the panchayat by the voting system, by a process which is called, means in a democratic way. We are electing a government in a democratic way. So we can see that at grassroots level we have the democracy in our country. फिर है it has brought government and the people closer to each other. इससे जब हम वोटिंग करते हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो इससे क्या होता है, it has brought government and the people closer to each other. इससे लोग और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं. फिर है people have become partners in decision making at the local level. अब हम डिसीज़न मेकिंग कैसे कर रहे हैं, हम वोटिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन सरपंच बने, कोई पर्टिकुलर person member of panchayat bane. So we are giving our decision, we are giving our decision through voting. So it means ki we have a partnership in decision making. So this way we have the right. Last is it has helped in improving the general condition of the people through welfare activities. इसके थ्रू जब हम अपने डेमोक्रेटिक वे में कर रहे हैं, हम पंचायती राज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस अपने एरिया की जनरल कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू वेलफेयर एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़. जैसे अभी हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम इन विलेजेस, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स जिसकी वजह से विलेज स्टूडेंट्स, दे आर मीन्स विलेज चिल्ड्रन, वी कैन से they don't go to school because sometimes they are working with their parents in the field, sometimes they are doing some labor work at some places to help their family, means because their financial condition almost is very poor. So for that purpose all the members, whether they are children, whether they are elders, they have to work together. So for that purpose they are helping their parents, they are helping their houses, their homes, they are working. For that reason they don't go to school, and sometimes they don't have uniform. एक प्रॉब्लम आ रहा है, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं, because they are poor, they are not having their bags, they don't have money to purchase bags and uniforms, to purchase books, even they don't have a facility to take lunch for their lunch period for their school. So for all these problems, for all these you can say difficulties of the village people, village children, government have means you can say government has introduced so many policies for the motivation, for the improvement of education system of villages. उन्होंने उनको मिड डे मील देना शुरू करा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई चिल्ड्रन को ताकि वो स्कूल आए. उनको एक टेम्पटेशन दी गई दैट यू विल गेट यूनिफॉर्म इन समर्स, यू विल गेट दिस यूनिफॉर्म इन विंटर्स, you will get woolens also, you will get shoes, you will get bags, you will get books free of cost. So for वो सब किस लिए किया, ताकि वहाँ के बच्चों को, गांव के बच्चों को मोटिवेट किया जा सके कि वो भी स्टडीज़ की तरफ बढ़ें, ताकि वो अपने आप को एजुकेट करें rather than they work as laborers. So for this हम जब हम वो सब चीज़ें वेलफेयर एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो somewhere they are improving the general condition of the people of the villages. So all these things are very much connected to the village panchayat or our panchayati raj system with all its 3 tiers. For today I think this much is okay, and I am giving you some questions. Question number 5, question number 6, question number
question number 7 and 8. You will search and do it in your practice copy. Otherwise, I'll give you the answers afterwards. And few questions I will send the PDF for today. And I hope you have understood and you have enjoyed today's session. Thank you and have a nice day.